Good morning, I'm Dharak Sharma And I, Ahan Mahajan. from Grade 8 from International Delhi Public School. So, our project is based upon sustainable development. Its theme is transportation and communication. Its topic is scientific voyage. So, do you know that India faces more than 1 million casualties due to air pollution? So, we have come up with this carbon purifier. This carbon purifier is really important for quickly developing cities like Delhi. This purifies the harmful inorganic gases that are in our atmosphere. Blind Curve Sensor. Blind Curve Sensor is an innovative safety feature designed to detect and alert drivers of approaching vehicle around the curve road, reducing the risk of accident. Whenever a car is going to be approached from here, the sensor gets activated and send the signals, and the driver knows that a car is going to be approached from here, so he can stop or take reverse. So, next up we have this elevated bus. This bus is also known as traveling bus or floating bus. This bus might be a revolutionary change in the transport system for India, as this is relevant and safer for Indian roads. This lets the other traffic to. Now I'm going to explain about the conversion of pressure into electricity. Here we have a speed breaker. Whenever a vehicle passes over this speed breaker, the pressure exerted by this vehicle will be changed into electric energy. Because it contains piezoelectric sensor which change the pressure into electric energy. So, nowadays, you know that most of the emergency vehicles like ambulances or fire brigades often get stuck due to traffic. So, to handle this problem, we have come up with hydraulic roads. How these roads work is that the part of road which is not in use gets elevated up to connect to another road. This helps the vehicles to share two paths. Now I will tell you about plastic roads. Plastic roads is an innovative and sustainable solution for constructing a road. It is used recycled plastic. We have used recycled plastic waste, and we have created durable and cost-effective road. Nowadays, finding a car parking might be really difficult for us. So, advanced car parking system has been introduced. This is cost-effective, user-friendly and efficient. This uses pistons to lift cars and park just near the car below it. Fog converter. A mesh or mistake shifter optimized for collection of fog droplet. It is for collection of fog droplet. It is collected in storage tank. It also removes impurity and contaminant from the water. ये एक वुमेन सेफ्टी डिवाइस है जो कि वुमेन के लिए बनाया गया है और इसमें हमने दो स्विच, इसमें एक पैनिक बटन है और एक स्विच है। पैनिक बटन को हमने आर्डिनो यूनो के साथ अटैच किया है और आर्डिनो यूनो हमारे जीपीएस और जीएसएम मॉड्यूल के साथ अटैच है। जो जीपीएस मॉड्यूल हमारी लाइव लोकेशन शेयर करेगा एंड जीएसएम मॉड्यूल हमारे एक ऑटो टेक्स्ट मैसेज सेंड करेगा किसी भी एमरजेंसी नंबर पे जो हमने कोड में इंसर्ट किया है। और फिर जो ये स्विच है, ये स्विच हमारा करंट जनरेटर और लिथियम आयन बैटरी के साथ कनेक्ट है। जब भी कोई पोटेंशियल अटैकर अगर किसी भी को भी छेड़ने या फिर उसको हरास करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो पहले पुश बटन दबाएगी, मतलब अगर दबाएगी क्योंकि बोथ द जेंडर्स बिकॉज इन सम एरिया मैन आर आल्सो नॉट सेफ, तो ये दोनों जेंडर के लिए ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और बच्चे 10 साल से छोटे बच्चों के लिए ये नहीं है। तो फिर पहले इस स्विच को दबाना है तो उसकी लोकेशन एंड एन एसएमएस मैसेज शेयर हो जाएगा नंबर पर और फिर उसके बाद ये स्विच को दबा सकती है जिससे उसे 440 वोल्ट का करंट उसकी बॉडी में जाएगा और उसके बाद उसके ब्रेन पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा या इस चीज से। और इसके बीच में हमें टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा कि हम थोड़ा सा अपना बच के भाग सके। और ये करंट Through this wire, we have given the power to the Arduino Uno board. When we press the panic button, you see a message which comes here. It pops up in the phone. It will come 2 to 3 times continuously until it is responded to. Here you can see the location as well as the message, alert I need help. Thank you. हमारे प्रोजेक्ट का मेन टाइटल है लाइसेंस स्कैनर।
हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली जैसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं टीनेजर्स के और जो इंक्रीजिंग रेट है इंडिया में थेफ्ट का, उसको देखकर हमने बनाया है। जैसे ये लाइसेंस है, ये इस लाइसेंस पर हमने एक RFID चिप फिट की है और हर एक RFID चिप की एक यूनिक UID होती है। जैसे इस RFID चिप की अलग है और जो बाकी RFID कार्ड्स होंगे उसकी अलग होगी। जैसे जब हम ये कार्ड अपने प्रोजेक्ट में स्कैन करेंगे तब एक वाइट LED लाइट अप होगी जो इंडिकेट करेगी कि व्हीकल स्टार्ट हो गया। और जब हमें कोई भी व्हीकल स्टार्ट करना होता है, कार्स में हमें हैंड ब्रेक पुल करनी होती है और जो स्कूटीज़ वगैरह या बाइक्स वगैरह उनमें ब्रेक दबानी होती है पहले, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और जैसे अगर हम हैंड ब्रेक या ब्रेक दबाएंगे तब जो ये वायर है ये ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और जब ये कनेक्ट होगी तो हमारा व्हीकल चलने लगेगा। अगर हम चाहते हैं अपना व्हीकल ऑफ करना तो इस बटन को प्रेस करना होगा, जो हमारा व्हीकल है वो ऑफ हो जाएगा। इसका एक एडवांस फीचर भी है और वो एडवांस फीचर ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस है और वो ऑथराइज भी है, मतलब वो गवर्नमेंट ने इशू किया है, फिर भी अगर उसकी जो RFID चिप है उसका जो UID है वो रजिस्टर्ड नहीं है हमारी कार के सिस्टम में, तो जब आप उसको स्कैन करोगे तो एक बजर बीप होगा और एक ग्रीन LED जो है लाइट अप हो जाएगी। ये तब तक बजर बीप होगा तब तक आप वो लाइसेंस कार्ड वापस स्कैन नहीं कर लेते। इससे जो ऑनर है उसको पता चल जाएगा कि किसी ने अटेम्प्ट किया है एक अनऑथराइज लाइसेंस स्कैन करने का, और वो आके चेक कर सकता है कि इधर वो चोरी के लिए या किसी और पर्पज़ के उसने स्कैन किया। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमने देखा है कि हम इसको बेसिकली बहुत स्मॉल बनाएंगे क्योंकि जो गाड़ी की मैन्युफैक्चर है उनका रेट बहुत हाई है, तो हम चाहते हैं कि गाड़ी की मैन्युफैक्चर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और साथ में हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत कॉस्ट एफिशिएंसी है, इसका कॉस्ट हमें अराउंड 1500 to 2000 पड़ा है। हमने एक अपना ऐप भी डेवलप किया है। जैसे अगर आपको शक होता है, किसी पेरेंट को शक होता है कि वो अपना लाइसेंस लेके वो जा सकता है, जैसे उनका कोई बच्चा उनका लाइसेंस लेके जा सकता है, तो हमने उसके लिए अपना एक ऐप डेवलप किया है जिसमें हमारा लाइसेंस ट्रैकिंग का फीचर कि अगर नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो गए, हाई लेवल के लिए सिलेक्ट हो गए, तो हम ऑर्डिनो की जगह रास्पबेरी पाई और RFID की जगह NFC यूज़ करेंगे जो बहुत सिक्योर होता है और उसमें GPS का भी एडवांटेजेस आते हैं। जैसे हमने इस बटन को जब क्लिक करेंगे आगे हमारी डिटेल्स हमें फिल करनी होगी, जब हम ये सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जैसे अगर इंडिया का है डिजीलॉकर, तो हम डिजीलॉकर में पहले ये सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, तो अर्जेंटली हम बस एक बटन क्लिक करके इसे सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। फिर जब हम एंटर पर क्लिक करेंगे डिटेल फिल करके तो एक लाइव लोकेशन आ जाएगी जहाँ पे तो आपका लाइसेंस होगा। ये हमने बाकी फीचर्स अपने ऐप में डाले हैं कि अगर किसी की गाड़ी ओल्ड मॉडल है पर उसको हमारा लाइसेंस स्कैनर अपने गाड़ी में डलवाना है तो वो डलवा सकता है। ये हमारा ऐप है इसमें। As we all know, drugs is the major component that is smuggled from Pakistan to India through airways and waterways. Drugs and militants get in India through airways and waterways, as we all know. Few days ago, militants attack on our convoys that happens in Jammu. Now let me tell you about our project, which is Li-Fi enabled transmission and surveillance system. Here is our project, which is based on Li-Fi technology. Here we can see there is a light which will transfer data to the solar panel and the speaker will speak what the data is transferring to it. Here we have a bullet counter. In this, if there is any bullet shooted from it, the IR sensor will throw a beam of light and it will be reflected back, and then the bullet will be counted. It is helpful for our army persons. एयर प्रेशर की वजह से एयर प्रेशर नो, यहाँ पर जब बुलेट है आयर सेंसर क्या करता है, एक लाइट थ्रो करता है और उसे रिफ्लेक्ट बैक करके अपने अगर लाइट बीच से ब्लॉक नहीं बाइक में आप ये यूज़ करोगे तो एयर प्रेशर का कम होगा नहीं होते हैं। अब 11th का एक प्रॉपर्टी है मैकेनिक्स में आता है, पर उसके अंदर ये लिखा है कि अब जैसे कोई भी दो बॉडीज हैं बहुत ही स्पीड में एक भी निकलता है ना, दोनों एक दूसरे के आसपास आते हैं, बीच के प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ बीच का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ये रेस्ट बॉडी है ना, बॉडी इज एट रेस्ट। ये लाइट की बीम थ्रो कर रही है, लाइट की बीम तो प्रेशर क्रिएट करेगी नहीं, बट जो बुलेट है वो स्पीड में जा रहा है ना, बुलेट वेलोसिटी के जैसे साथ। बुलेट फायर हुई। तो ये क्या है, अगर हम इसे लार्ज स्केल पे बनाए तो हम इसे मॉडिफाई करके ऐसा कर सकते हैं कि कॉम्पैक्ट जोन में ये अच्छे से बनेगा, लेकिन ये प्रोटोटाइप है तो इस हिसाब से हम IR सेंसर यूज़ कर रहे हैं। IR सेंसर की जगह हम कई और सेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये बुलेट फायर हो रही है तो यहाँ पर काउंट करके लिख रहा है, जैसे एक कंपनी भी है रेड टिप नाम से, उसने इसको अभी डेवलप भी किया है ऐसे आइडिया को, और उस आइडिया में क्या है कि जितनी बुलेट आप फायर कर रहे हैं उतनी बुलेट इधर शो करेगा और रेस्ट ऑफ द बुलेट विल आपको पता रहेगा। ये हमारे आर्मी पर्सन और सोल्जर्स के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत टाइम्स और फायरिंग के टाइम पे। हियर वी हैव अ कंट्रोल रूम जिसमें हमारे मोस्टली 3 मेजर कंपोनेंट्स है। पहला
वेदर फोरकास्ट मॉड्यूल, दूसरा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी शो करता है। वेदर फोरकास्ट मॉड्यूल हमारा वेदर बताता है कि आज वेदर कितना है। क्योंकि ये डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड है तो उसके अंदर हमने वेदर एक कोड डाला है जिसे हमने वेदर ओपन वेदर प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। वो डायरेक्टली बताएगा, जैसे हम लोग बाहर देख सकते हैं आज सनी है तो इधर भी सनी लिख के आता है। ये हमारा ड्रोन है, ये दिस इज आवर सर्वेलेंस ड्रोन। इट इज़ अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा अंडर इन इट, and when it will fly it will show the real time feed what is happening in our surrounding in our control room as the BSF wants to know. So in our upcoming project we will make another projects. This is our all project all about us.